Welcome students. So we are solving rotational dynamics problems. Problem number 12. Somehow an ant is stuck to the rim of a bicycle wheel of diameter 1 meter. While the bicycle is on a central stand, the wheel is set into rotation and it attains the frequency of 2 revolutions per second in 10 seconds with uniform angular acceleration. See, here first is given diameter of that bicycle wheel, that is 1 meter. From that radius will be 0.5 meter. Frequency is given 2 revolution per second, means 2 hertz, and time taken is 10 seconds. We have to find the number of revolutions. Number of revolutions completed by the ant in those 10 seconds, and we have to also find time taken by the first complete revolution and the last complete revolution, that is T1 and T2 respectively. Okay, so let's see. Here first they have given the diameter. From the diameter we can find the radius, that is half of diameter. See, here angular acceleration is constant. जब भी angular acceleration क्या होगा, constant होता है, तब हम क्या कर सकते हैं, kinematical equations use कर सकते हैं. So basically we have a kinematical equations, that is okay. See, so we have another equation, that is S is equal to ut plus half alpha t square. From that we can write theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. See, यहाँ पे जो थीटा है, थीटा क्या होता है, बेसिकली एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के लिए जो टाइम लगेगा हमें. कंप्लीट रिवॉल्यूशन मीन्स इट विल बी 2 पाई, बट पर्टिकुलरली दैट 2 पाई विल बी, अभी सम केसेस में एक रिवॉल्यूशन होगा तो ये 2 पाई होगा, लेकिन जब 2 रिवॉल्यूशन हो गए तो 2 पाई इंटू 2 होगा, 3 रिवॉल्यूशन हो गए तो 2 पाई इंटू 3 होगा. सो बेसिकली थीटा इज नथिंग बट 2 पाई एन. सी, थीटा मीन्स क्या है, जो एंगल है. वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन गिव्स अस 2 पाई, बट इन केस ऑफ 2 रिवॉल्यूशन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2, then we can multiply it by 3, so we have to multiply it by number of revolution. Here capital N means क्या है, number of revolution. Small n frequency है, capital N क्या है, number of revolution. So यहाँ पे ओमेगा 0t क्या होगा, 0 होगा. क्यों? क्योंकि हर जगह ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ओमेगा 0 का वैल्यू 0 ही आएगा, क्योंकि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है. अब यहाँ पे हाफ इंटू 0.4 पाई इंटू टी स्क्वेयर. सो वी आर फाइंडिंग हियर capital N, so we can put the value of t here, that value is 10, so just square it. So here 2 pi capital N half into okay 0.4 pi 10 square, that is 100. अभी यहाँ आप क्या कर सकते हैं, 0.4 को यहाँ डिवाइड करने के बाद directly 0.2, okay, 2 to the 4, that is 0.2 pi into 100. So now you can cancel this pi and this pi. We are going to find n, so it will be 0.2 into 100 divided by 2. So this will be okay 20 by 2 means 10. So number of revolution कितने मिले हमें, 10 मिले हैं. That capital N is what, number of revolution plus half at square. So which is analogous equation in case of rotational motion, that is theta is equal to omega t, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट टी होता है, प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वेयर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा. अभी हमने देखा था थीटा का फॉर्मूला 2 पाई कैपिटल एन, सो दिस विल बी 2 पाई कैपिटल एन. ओके, नाउ इस प्रॉब्लम में इनिशियल वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी हर जगह 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू मिलेगा 0 प्लस हाफ इंटू 0.4 पाई इंटू टी का स्क्वायर मीन्स 10 का. यहाँ पे हमें क्या करने का है, ये जो t है अभी यहाँ पे फाइंड करने का है. ओके, सो वी आर गोइंग टू फाइंड हियर t1, सो वी हैव टू राइट t1 इन दैट. नाउ 2 pi n. So how many revolutions, for how many revolutions we are finding, that is for one revolution. So you have to write 2 pi into 1.
Okay, so now this will be 1 by 2 into 0.4 pi, so it will be 0.2 pi, ये 2 से डिवाइड किया है, into t1 का क्या है, स्क्वायर है. So now you can write here t1 square is equal to 2 pi, ये पाई पाई क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है, so divided by 0.2. so for this you can write यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 2, ये पॉइंट कैंसिल करके हमने ऊपर 0 दिया है, सो दिस विल बी 10. सो वी हैव अ t1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10, देयरफॉर t1 इज इक्वल टू √10 सेकंड. सी फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर n का वैल्यू 1 क्यों लिया है. दिस इज फॉर 1 रिवॉल्यूशन. ये जो t1 था ये क्या है, फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा. 10 रिवॉल्यूशन के लिए क्या होगा वो हमने देखा है, लेकिन हमें क्या फाइंड करने का है, फर्स्ट रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा, तो √10 second. In case of if you are taking that square root, it will be 3.162, but this is sufficient, √10 second. Now we are going to find t2. In case of t2 you have to just replace the capital N it by 9 से हम रिप्लेस करेंगे. क्यों 9 से रिप्लेस करेंगे, अभी ये देखेंगे. See here, अभी t1 का वैल्यू हमारे पास है √10 सेकंड. ओके, ये भी वैल्यू हमें मिल गया है t1 का √10 सेकंड. सी अभी हम ये जो इक्वेशन यूज करेंगे यहाँ पे हम क्या फाइंड करेंगे, t2 फाइंड करेंगे. सी नाउ वी आर गोइंग टू रिप्लेस कैपिटल N बाय 9 से रिप्लेस क्यों करने वाले हैं यहाँ हम, क्योंकि हमें ऑलरेडी 10 रिवॉल्यूशन के लिए टाइम मालूम है. अभी हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो हियर यू विल गेट 2 पाई इंटू 9, सो दिस विल बी 0 प्लस यहाँ पे 0 प्लस, ये ऑलरेडी आप यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 0.2 पाई इंटू t2 का स्क्वायर. ओके, सो दिस इज 18 पाई 0.2 pi into t2 square. So t2 square will be, this pi is going to cancel, 18 by 0.2 means t2 square is equal to, okay, 180 by 2 means this is a 90. So t2 square is equal to 90. Okay, t2 square is equal to 90. So from that t2 is equal to √90. अभी आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट में √90 का वैल्यू देखेंगे. सो दैट इज 9.4870, दैट इज 9.4870, ये है t2 का वैल्यू. सो यू कैन सी दिस वैल्यू इन केस ऑफ लॉग टेबल. In log table √90, that is 9.4870. See, this is for how many revolution? To complete 9 revolution. So we have multiplied by 9. अभी हमें क्या करने का है, 10 जो रिवॉल्यूशन थे, 10 रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे, 10. ओके, और ये जो 9th के लिए कितना लगा है हमें 9.4870. तो इसमें से मैं ये माइनस करूँगा, तब मुझे क्या मिलेगा, जो लास्ट का जो रिवॉल्यूशन है उसको कंप्लीट करने के कितना टाइम लगेगा ये मिलेगा. सो वी हैव टू सब्सट्रैक्ट इट. सो इट विल बी 10.000 here 9.487. okay, so 10 minus 7 that is 3, 9 minus 8 that is 1, 9 minus 4 that is 5, here 0. So our answer will be 0.5130 second. So this is for last revolution. Okay, for last revolution, time for last revolution. So this is our answer. Now let's see next problem.
Problem number 13. Coefficient of static friction between a coin and gramophone disc is 0.5. Mu is given. Radius of the disc is 8 cm. Initially, the center of the coin is pi centimeter away from the center of the disc. At what minimum frequency will it start slipping from there? By what factor will the answer change if the coin is almost at the rim? G is equal to pi square. See, first they have given us mu. Mu ka value, that is coefficient of static friction, 0.5. Radius of the disc, that is 8 centimeter, means 8 into 10 to the power minus 2 meter. And initially the center of the coin is pi centimeter. Basically ये जो है pi centimeter, that is print mistake, so that is 2 centimeter actual. So you have to write 2 into 10 to the power minus 2 meter. So we have to find the at what minimum frequency, means we have to find n1, then we also have to find n2, and ratio also we have to find, that is n2 by n1, and they have given us G is equal to pi square. C. So very easy problem. First you have to understand what is gramophone. जो म्यूजिक सुनने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रामोफोन. ये ग्रामोफोन क्या होता है? इट मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट. सो बेसिकली हियर व्हाट, हियर इज अ सेंटर, दैट इज C, एंड द कॉइन इज एट डिस्टेंस R डिस्टेंस पे क्या है? अपना जो कॉइन है यहाँ पे. अभी यहाँ पे क्या होने वाला है? ये कॉइन यहाँ पे घूमेगा, क्योंकि ग्रामोफोन क्या होता है? गोल घूमता है. दैट इज सिंपल. सो बेसिकली द रेडियस ऑफ दैट ग्रामोफोन इज कैपिटल R. So we have to find here n1. So how you are going to find? In case of here, first you have to understand n का वैल्यू क्या है यहाँ पे? mg. Okay. So basically जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स दैट कॉइन, और ये जो ग्रामोफोन का सरफेस है वहाँ पे क्या होगा? फ्रिक्शनल फोर्स. दैट फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज म्यू, इज इक्वल टू द centripetal force. Centripetal force is mr omega square. So you can write frictional force is equal to centripetal force. Now what is here mu? Centripetal force क्यों यूज किया हमने? क्योंकि यहाँ पे ग्रामोफोन क्या हो रहा है? सर्कुलर ऑर्बिट में मूव होता है. So mu is a frictional force. Now you can write mu is equal to, mu का फॉर्मूला क्या होता है? Okay, F is equal to क्या होता है? बेसिकली फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन होता है. ओके, यहाँ पे क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स का क्या फॉर्मूला? म्यू इंटू एन. सो यू हैव टू राइट म्यू, एंड एन का वैल्यू क्या है? एम जी. ओके, दैट इज एम जी. सो हियर इट विल बी एम आर ओमेगा स्क्वायर. दैट एम एम विल गेट कैंसल. यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू एन. एफ इज इक्वल टू म्यू एन. इस तरह से लिखने का था मुझे. ओके, सो हियर एम एम विल गेट कैंसल. सो नाउ वी हैव अ म्यू जी इज इक्वल टू R into omega square, that will be 2 pi n1 square. Now you can write here mu g, here is R, 4 pi square n1 square. Okay, now here this g and pi square will get cancelled because both values are same. Okay, g and pi square will get cancelled. So here what is the value of mu? Mu का वैल्यू क्या है? 0.5. ओके, R का वैल्यू क्या है? 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू n1 स्क्वायर. सो यू कैन राइट n1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. सो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू कैन राइट हियर n1 स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, ये माइनस 2 ऊपर जाने के बाद 0.5 इंटू 10 टू द पावर 2, माइनस 2 ऊपर जाने के बाद प्लस 2 हो गया, डिवाइडेड बाय 2. सो दिस विल बी, यहाँ पे क्या होगा? 0.5 इंटू 100,
divided by 2 means this will be 50 divided by 2. Okay, 50 divided by 2. So this will be 2 to this will be 25. n1 स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला है हमें? 25. Become 4. So now put the value. यहाँ पे हम म्यू का वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 0.5. ओके, हियर इज r, दैट इज 2 into 10 to the power minus 2 into 4 into n1 square. So it will be 8 into 10 to the power minus 2 into n1 square. So this will be 0.5. Now you can write here n1 square is equal to 0.5 divided by 8 into 10 to the power minus 2. Now this will be n1 square is equal to 0.5 into 10 to the power 2 divided by 8. So this will be 0.5 into 100 divided by 8 means 50 by 8 means 25 divided by 4. Okay, so it will be 1 point, sorry, क्या किया है हमने यहाँ पे? 2 से डिवाइड किया है, 25 divided by 4. So it will be n1 square. Okay, now just take the square root, it will be easy. So अभी स्क्वायर रूट लेंगे तो फिनिश होगा ये. क्या होगा फिर यहाँ पे? n1 is equal to 5 by 2. So here it will be 2 point. Okay, 2 to the 4, 1 is here, 2 5 is 10, 2.5, that is 2 hertz. So this is our frequency, 2.5 hertz. Okay, so now we are going to find the value of n2. So in case of n2, just do the similar steps. n1 का वैल्यू क्या मिला है हमें? 2.5. ओके, n1 का वैल्यू मिला है 2.5. नाउ व्हाट इज आवर फॉर्मूला? दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, CPF, सेंट्रीपिटल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन. यहाँ पे m r ओमेगा स्क्वेयर. सो म्यू इंटू एन का फॉर्मूला क्या है? mg. m r ओमेगा स्क्वेयर के लिए क्या लिखूंगा मैं? 2 पाई n2 स्क्वेयर. सो दिस mm विल गेट कैंसल. म्यू g इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे कौन सा r होगा? कैपिटल R, क्योंकि अभी जो यहाँ स्टार्टिंग में हमने R तक स्टडी किया था, अभी हम किसके लिए स्टडी कर रहे हैं? कैपिटल R के लिए. तो यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल R. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल R? दैट इज 8 into 10 to the power minus 2 इंटू स्क्वेयर करो 4 पाई स्क्वेयर n2 स्क्वेयर, पाई स्क्वेयर एंड जी विल गेट कैंसिल. अभी म्यू का वैल्यू है वो भी आपको पुट करना है यहाँ पे. म्यू का वैल्यू क्या है? 0.5. सो n2 स्क्वेयर विल बी 0.5 divided by 8 4 the 32 into 10 to the power minus 2. So write down it. n2 square will be 0.5 into 10 to the power plus 2 divided by 32 means
ये क्या होने वाला है, 10 to the power 2 मीन्स 100, 100 into 0.5 that will be 50 divided by 32. So divide by 2, 25 divided by 16. So we have a n2 square is equal to, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे डायरेक्टली, क्या होगा 5/4. ओके, और आप इसको डिवाइड करने के बाद मिलेगा आपको 1.4 1 जा, okay, 4. Now here is 1 is remaining, give 0, 4 2 जा 8, 4. Okay, so this is 1.25 hertz. So this is our n2. So when if you are to find n2 by n1, you can write here n2 by n1. n2 is 1.25 divided by 2.50. So this will be 1/2 n2 by n1. So you can write here n2 is equal to 1/2 into n1. Okay, so this is our problem related to the gramophone. Let's see another problem, that is problem number 14. So first I will clear it. So problem number 14 is, part of racing track is to be designed for a curvature of 72 meter. We are not recommending the vehicles to drive faster than 216 km per hour. With what angle should the road be tilted? By what height will its outer edge be with respect to the inner edge if the track is 10 meter wide? See here, first is that is 72 meter, that is radius. Now the optimum speed is given, that is 216 km per hour. Okay, now we have to find what angle, means we have to find the angle of banking, that is theta, and by what height. So you are going to find here height. Okay, we have to also find the edge. So very easy problem. This problem is related to the banking of road. See here, in this problem the velocity is optimum velocity, means the safest speed by which our vehicle can travel, that is in kilometer per hour. So we have to convert it into meter per second. So how we are going to convert? By multiplying by 5/18. कभी भी आपको क्या करने का है, किलोमीटर पर आवर का रूपांतर मीटर पर सेकंड में करने का है, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है. ये 11th स्टैंडर्ड में हमने देखा है. ओके, सो जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट. ओके, सो you can divide it by 3. 3 6 जा 18. So 3 7 जा 21. यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 5/6. ओके, नाउ अभी 6 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ मिलेगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. So our answer will be 60 meter per second, that is velocity. See, we know that if optimum speed is given, then v is equal to root rg tan theta. Take the square of both sides, it will be v square is equal to rg tan theta. Then what we are going to find theta? So theta will be, so first write down tan theta. So tan theta will be v square by rg. V square by rg.
first write down it carefully. V square by Rg. Now you can write here, we are going to find theta, and therefore it will be theta is equal to tan inverse V square by Rg. ये फॉर्मूला हमने देखा है बैंकिंग ऑफ फ्लूइड में. ओके, अभी आप देख सकते हैं जो आपको वैल्यूज पुट करने का है, यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा, यहाँ पे tan इनवर्स ओके v स्क्वेयर. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v? दैट इज 60. 60 का स्क्वायर है मीन्स आप 60 इंटू 60 लिख सकते हैं. r का वैल्यू क्या है? 72 है. ओके, और g का वैल्यू क्या है? 10 है. 9.8 in textbook you can use instead of g, that is 10. okay, so अभी आपको क्या करने का है? इसे सॉल्व करने का है. so after solving this you'll get tan inverse 5. so here you can solve this very easily. See, this 0 will get cancelled. Now you can divide by 6. See here, 6 1 the 6, 6 2 the 12. So you have a theta is equal to tan inverse 5. Okay, यहाँ 12 से और डिवाइड करेंगे तो 12 5 is 60. So theta is equal to tan inverse 5. अभी आपको क्या करने का है? ये जो tan inverse 5 है उसे आपको फाइंड करने का है log टेबल में. okay, you can find this value in natural tangents. natural tangents में ये जो वैल्यू है आप देख सकते हैं 5.00 वाला वैल्यू. so this value you will get. सी अभी आपको क्या करना है? tan इनवर्स 5 करने का है फाइंड. ओके, मीन्स आपको क्या करना पड़ता है? tan इनवर्स 5.00 फाइंड करना पड़ता है. 5 मीन्स 5.00. तो आप नेचुरल टेंजेंट्स लॉग टेबल में यूज़ करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि tan इनवर्स 5 मीन्स ये 5 जो है वहाँ कहाँ पे मिलेगा? तो हमें मिलेगा 78 डिग्री में और 42 मिनट्स के नीचे. So our answer will be 78 degree and 42 minutes. So this will be our answer, 78 degree 42 minutes. So that is the correct answer. Exact answer 78 degree 42 minutes. अभी हमें क्या फाइंड करने का है? h का वैल्यू फाइंड करने का है. ओके, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h. सो अभी h का वैल्यू फाइंड करने के लिए यू कैन जनरली सी दैट हाइट अभी हमें फाइंड करना है. तो आप देख सकते हैं कि इन केस ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग दिस रोड इज रेज्ड. ये रोड को क्या करते हैं? हम रेज करते हैं, थोड़ा ऊपर उठाते हैं. सो दिस विल बी अवर हाइट. ये क्या होगा? हमारा हाइट होगा. ओके, दिस विल बी अवर हाइट एंड दिस विल बी द विड्थ ऑफ दैट रोड एंड दिस विल बी अवर थीटा. सो थीटा विल बी h. ओके, साइन थीटा विल बी h बाय w. अभी हमारे पास फॉर्मूला है साइन थीटा का. क्या है फॉर्मूला? साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस. यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस होगा, ये अपोजिट साइड होगा. सो इट विल बी h बाय w. सो फ्रॉम दैट यू कैन राइट h इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू w. ओके, h इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू w. सी हियर साइन थीटा बाय क्या मिला है हमें? साइन थीटा इंटू डब्ल्यू. अभी लास्ट जो इक्वेशन हमने देखा था वहाँ पे हमें कहीं तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 इस तरह से कुछ तो वैल्यू मिला था.
ओके, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5, ये वैल्यू हमें अभी मिला था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5. सो यू कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू 5. ये tan इनवर्स इधर आएगा तो क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 5. ये इक्वेशन अभी हमने देखा था जब हम क्या कर रहे थे, एक वैल्यू फाइंड कर रहे थे थीटा का, तब हमने ये किया था. ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, 5 है, मीन्स नीचे क्या है, 1 होगा. सो tan थीटा का वैल्यू क्या है, 5/1. सो व्हाट इज द ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला फॉर tan थीटा, adjacent side by hypotenuse. See, this will be our adjacent side, okay, and this will be our hypotenuse. Okay, see, tan theta का फॉर्मूला क्या है सॉरी, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड. क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड. सो 5 विल बी our opposite side and adjacent side will be 1. तो आप पाइथागोरस का यूज़ कर सकते हैं, और इसका वैल्यू हम बता सकते हैं. क्या होगा, 5 स्क्वायर दैट विल बी 25 प्लस 1 दैट विल बी 20, दैट इज 26. सो वी हैव अ root 26. By using Pythagoras we have root 26. Okay, so from that you can see here, जो यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वहाँ पे हम देख सकते हैं साइन थीटा का जो वैल्यू है वो हमें मिलेगा अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस. सो क्या मिलेगा, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस. सो यू कैन राइट हियर 5/√26 इंटू विड्थ का वैल्यू क्या है, डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, हमें दिया था डब्ल्यू का वैल्यू 10 दिया था. ओके, फ्रॉम दैट यू कैन फाइंड एच. Okay, so this will give you 9.806 meter. So you have to solve this and you will get 9.806 meter. So this will be our value of height. Okay, so you have to solve by using log and all these things. यहाँ पे बहुत ही easy है. क्या किया है मैंने, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस. सो अपोजिट साइड क्या होगा, h, और हाइपोटेनियस w, h/w. सो h विल बी साइन थीटा इंटू w. सो हाउ साइन थीटा इज इक्वल टू 5/√26, ये हमने इधर प्रूव किया है. tan थीटा का वैल्यू 5/1 मिला, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, ये 5 और इसको 1 कंसिडर अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, दैट फ्रॉम द tan थीटा. अभी आप पाइथागोरस यूज़ करेंगे इसके लिए, तो आपको ये मिलेगा √26. सो फ्रॉम दैट वी आर राइटिंग साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, दैट इज 5/√26 इंटू 10. सो यू विल गेट 9.806 मीटर, दैट इज h. ओके, ये जो h का वैल्यू है वो हमें मिला है. सो लेट्स सी अनदर प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस ओनली. Number 15. The road in the question 14 above is constructed as per the requirements. The coefficient of static friction between the tires of vehicle on this road is 0.8. Will there be any lower speed limit? By how much can the upper speed limit exceed in this case? ओके, सो अभी जो लास्ट प्रॉब्लम था उसमें के जो वैल्यू है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर थीटा का जो वैल्यू है वो हमने लिया था 78 डिग्री 42 मिनट्स, ये हमने फाइंड किया था. थीटा इज इक्वल टू 78 डिग्री एंड 42 मिनट्स. देन वी हैव फ्रॉम लास्ट प्रॉब्लम that velocity was 60 meter per second. Okay, radius is 72 meter, and here in this problem the friction is given mu is equal to 0.8. So we have to find first V minimum and then we are going to find V maximum. Okay,
सो फर्स्ट नोट डाउन दिस. tan थीटा का वैल्यू हमें मालूम है. tan थीटा का वैल्यू क्या था? 5 था. लास्ट जो इक्वेशन हमें मिला था उसमें ही हमने देखा था tan थीटा का वैल्यू क्या है? 5 है. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 5. सो वी हैव टू फाइंड द v मिनिमम. जो बैंकिंग ऑफ रोड का जो फॉर्मूला है उसमें हमने देखा था कि v मिनिमम के लिए क्या फॉर्मूला है. सो वी हैव v मिनिमम इज इक्वल टू रूट आर जी tan theta minus mu s, and here 1 plus mu s tan theta. So this formula we learn in case of banking of road, that is v is equal to root rg tan theta minus mu s 1 divided by 1 plus mu s tan theta. ये फॉर्मूला हमने देखा था. और जब मैक्सिमम स्पीड फाइंड करने का था तब यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा और यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा. सो नाउ जस्ट पुट द वैल्यू. यहाँ पे r का जो वैल्यू है 72 इंटू जी का वैल्यू 10. सी tan थीटा इज व्हाट? tan थीटा इज 5, म्यू इज 0.8 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.8 इंटू 5. ओके. सो आपको ये जो प्रॉब्लम है वेरी इजी प्रॉब्लम. ओके. 5 माइनस 0.8 दैट विल बी 4.2. ये आपको सब सॉल्व करने का है. ओके. दिस विल बी 720 इंटू इन ब्रैकेट 5 माइनस 0.2 दैट विल बी 4.2 एंड हियर 1 प्लस 8 इंटू 5 दैट विल बी 4. 0.8 इंटू 5. ओके. यहाँ पे होगा 4 होगा. ये आपको सब सॉल्व करने के बाद फाइनली यू विल गेट V minimum, that is 24.59 meter per second. This will be the approximate value. कम ज़्यादा आ सकता है वैल्यू 24.59 मीटर पर सेकंड. ओके. अभी ये आपको सॉल्व करने का है. यूजिंग लॉग टेबल यू कैन सॉल्व दिस. 24.59 इसके थोड़ा कम ज़्यादा चलेगा वैल्यू, नो प्रॉब्लम. So in case if you have to convert it into kilometer per hour, just multiply it by 18 by 5. 24.59. See, जब किलोमीटर पर आवर का रूपांतर हमने मीटर पर सेकंड में किया था तब हमने 5 by 18 किया था. अब उल्टा करने का है तब हम क्या करेंगे? 18 by 5. So finally you will get 88.52 किलोमीटर पर आवर. 88.52 किलोमीटर पर आवर. यहाँ तक आंसर लिखा तो भी आपको राइट मार्क्स मिलेंगे. ओके. सो दिस इज अबाउट v मिनिमम. बट व्हेन यू आर गोइंग टू फाइंड अबाउट v max, ओके, यहाँ पे जब आप v max का वैल्यू फाइंड करने वाले हैं तब आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे v max का वैल्यू तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा माइनस. ओके. सो ओनली जस्ट द अपोजिट फॉर्मूला टू ईच अदर. फॉर स्पीड लिमिट टू एग्जिस्ट म्यू एस टैन थीटा शुड बी लेस देन 1. ये जो म्यू एस टैन थीटा का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए फॉर स्पीड लिमिट. ओके. दिस शुड बी आवर कंडीशन. क्यों वैसा होना चाहिए? म्यू एस टैन थीटा का वैल्यू लेस देन 1 क्यों होना चाहिए? यहाँ पे लेस होगा वैल्यू तभी यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा. क्योंकि वेलोसिटी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए. लेकिन ये वैल्यू बड़ा होगा तो ये नंबर में क्या होगा? नेगेटिव वैल्यू आएगा. जब नेगेटिव वैल्यू रूट में आएगा दैट विल बी द इमेजिनरी नंबर. अभी हमें क्या मालूम होना चाहिए? म्यू एस टैन थीटा का वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए. सो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 4. ओके. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे म्यू एस का वैल्यू जब डालेंगे 0.8 इंटू 5 तब हमें मिलता है 4. तो दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन 1. इसलिए हम यहाँ क्या कहेंगे कि स्पीड लिमिट यहाँ पे क्या होगा?
डज नॉट एग्जिस्ट, स्पीड लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, मीन्स जितना ज़्यादा व्हीकल फास्ट जाएगा दैट विल बी गुड, ये होगा यहाँ पे. ओके, सो फॉर दिस केस you have to write speed limit does not exist. Okay, speed limit does not exist. Okay, कितने भी स्पीड से आप यहाँ पे जो व्हीकल है वो चला सकते हैं. So now let's see the problem number 16. During a stunt, a cyclist considered to be a particle is undertaking horizontal circles inside a cylindrical well of radius 6.05 meter. So here is one cyclist is taking turn. So radius is given, that is 6.05 meter. If the necessary friction coefficient is 0.5, how much minimum speed should be the stunt artist maintain? So we have to first find the minimum speed. Mass of the artist is given, that is 50 kilogram. If she or he increases the speed by 20%, how much will the force of friction will be? So here first we are going to find the minimum velocity in case of well of death. This is the problem related to the well of death, and we already learned in case of well of death the minimum velocity is given as V minimum is root rg upon mu. So this formula we already derived in when we were learning theory. So now just put the value. What is the value of r? That is 6.05 into g is 10 and mu is 0.5. Okay, so you can write this after multiplying 60.5 divided by 0.5. Okay, this point will get cancelled, so we have 605 divided by 5. Now in square root just divide 605 by 5, so 5 ones are 5, 5 twos are 10 and 5 ones are 5. So the minimum value of velocity, take the square root of 121, that is 11 meter per second. So from this formula of root rg upon mu, where mu is the force of friction, see what is happening here. In well of death, a cyclist is performing like this circle, and the force of friction is balanced by the weight of the body. The normal reaction will be the toward the center, and therefore we have the formula V minimum is equal to root rg upon mu. So this formula is very important in case of sphere of death. So now, well, so we have to also find in this problem that F, and from easy equation, that is F is equal to mg. So mass is 50 and what is g here? That is 10. So you can write 500 Newton. Okay, so very easy problem. It is 500 Newton. So this is problem number 16. Okay. Now see the problem number 17. So let's see next problem number 17. A pendulum consisting of a massless string of length 20 centimeter and a tiny bob of mass 100 gram is set up as a conical pendulum. Its bob now performs 75 rpm. Calculate kinetic energy and increase in the gravitational potential energy of the bob. See here,
length is given. Next, number of revolutions per minute. So we have to convert it into per second, then we have to divide it by 60. Mass is 100 gram. Let's convert it into kilogram. हमें मालूम है ग्राम का किलोग्राम करने के लिए क्या करना पड़ता है, -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. So this is a conversion that you should know this. So now first you have to understand, here we have to find the kinetic energy and potential energy. So basically अभी हम जो conical pendulum है यहाँ पे हम देखते हैं, first understand this diagram. This bob is performing such a motion where its length, actually ये जो length है अभी ये motion perform करते समय यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम पोजीशन ये थी, ओके, मेन पोजीशन ये थी, लेकिन अभी बॉब यहाँ पे जाएगा क्योंकि ये इस तरह से अभी घूमता है, ओके. सो यहाँ से यहाँ तक हमने लेंथ दिखाया है. सो बेसिकली दिस विल बी द रेडियस. इन केस ऑफ कोनिकल पेंडुलम वी नो दैट t इज इक्वल टू 2 पाई, ओके, रूट L cos थीटा अपॉन g. व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी जब हम देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्स लेना पड़ेगा हमें. सो इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी वी नो दैट n इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t. सो अभी जब हम n फाइंड करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये क्या होगा, 1/2 पाई रूट यहाँ पे g अपॉन L cos थीटा. ये रिलेशन है n और t के बीच में इन्वर्सली. सो इसलिए ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, ठीक है. तो अभी आप देख सकते हैं कि हमें क्या करने का है. फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा. cos थीटा फाइंड करना है हमें, तो इसका हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा. सो इट विल बी n स्क्वायर 1/4 पाई स्क्वायर g अपॉन L cos थीटा, ओके. आफ्टर टेकिंग स्क्वायर द स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल. नाउ सी हियर दिस g एंड पाई स्क्वायर बोथ आर सेम. g और पाई स्क्वायर क्या है, सेम है. g का वैल्यू 9.8, अप्रोक्सीमेटली 10, पाई स्क्वायर का वैल्यू भी सेम है, तो बोथ विल बी कैंसल. सो नाउ फॉर टू फाइंड द L cos थीटा वी कैन राइट फर्स्ट L cos थीटा दैट विल बी 1/4 इंटू n का स्क्वायर. सो 1/4 इंटू व्हाट इज हियर n, 75/60. सो इसका हमें स्क्वायर करने का है. तो स्क्वायर करते समय मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 75 इंटू 75. इट्स नॉट टू मच हार्ड, इट्स वेरी इजी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये 60 इंटू 60 होगा नीचे, ये ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ ऊपर लिखा है. सेम अबाउट 75, ओके. सो अभी आप जब डिवाइड करेंगे सो दिस विल बी 15, ओके. नाउ सिमिलरली यू कैन डिवाइड हियर 15 5 जा 75, ओके. और यहाँ पे हो जाएगा, इसका डिवीजन करने के बाद आपको मिलेगा L cos थीटा. L cos थीटा विल बी 12/75, okay. So first write down carefully. So we have L cos theta is equal to 12/75. I hope you are getting. This is 5, okay. L cos theta is equal to 12/75. Okay. So from this you can write L cos theta. ये जो वैल्यू है इसका जब डिवीजन आप लॉग टेबल वगैरह यूज़ करो दैट विल बी 0.16. देन cos थीटा, ओके. सो ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है हमारे लिए L cos थीटा का 0.16 डिवाइडेड बाय L. लेकिन जो L का जो वैल्यू है वो क्या है, 2 इंटू 10 टू द पावर -1. आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 0.8. क्या मिलेगा, 0.8. So we are getting cos theta is equal to 0.8. So this is an important value. Actually we are going to find the kinetic energy. So basically when we are finding kinetic energy, that time we should understand that the formula of kinetic energy which we are going to use is K is equal to
half mv square, but I am going to write m is equal to rg half m into rg tan theta, because we know that v is equal to रूट आर जी टैन थीटा। ये फॉर्मूला हमें मालूम है, कोनिकल पेंडुलम जब हमने पढ़ा था तब वेलोसिटी क्या मिली थी, v इज इक्वल टू रूट आर जी टैन थीटा। करो इसका स्क्वायर, क्या मिलेगा, आर जी टैन थीटा। सो वी स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा, आर जी टैन थीटा। सो वी हैव हाफ इंटू यम। अभी आप देख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस r by l, so r is equal to l into sin theta. So this will be r का वैल्यू क्या लिखेंगे हम, l into sin theta into g into tan theta। ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, सी cos theta is 0.8। cos theta का वैल्यू क्या है हमारे पास, 0.8। सी हियर we have a cos theta is equal to 0.8। तो आपको जब cos theta मालूम होता है तब आप sin theta निकाल सकते हैं, tan theta निकाल सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में हमने देखा है। ओके, सो इफ हियर इज अ थीटा, ओके, cos theta का वैल्यू आपके पास 0.8 है, नीचे क्या होगा, 1 होगा। क्या होता है cos theta, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनियस। सो दिस इज एडजेसेंट साइड 0.8 and this is hypotenuse, so we have 0.8 and here is 1। अभी आपको पाइथागोरस मालूम है, पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ करने के बाद ये जो वैल्यू है ये क्या मिलेगा हमें, 0.6। ओके, बाय यूजिंग पाइथागोरस वी हैव दिस वैल्यू विच इज अपोजिट साइड फॉर थीटा, दैट इज 0.6। सो फ्रॉम दैट आई एम गोइंग टू राइट हियर हाफ इंटू फर्स्ट व्हाट इज यम, m is 10 to the power minus 1. What is the L? L is 2 into 10 to the power minus 1. Now sin theta. Sin theta is what? Opposite side by hypotenuse. It will be sin theta का वैल्यू मैं अभी क्या लिखूँगा यहाँ पे, 0.6। g का वैल्यू हमें लेना है 10। tan theta का वैल्यू क्या होगा, अपोजिट साइड बाय adjacent side, so it will be 0.6 divided by 0.8। okay, 0.6 divided by 0.8। okay, so now just calculate it and it's a very easy calculation। see here we are finding actually Ke, so this Ke will be, this 2 will get cancelled, minus 1 minus 1 minus 2, 0.6 into 10 that is 6, point cancel, so we have a 6 by 8। okay, so 10 to the power minus 2 into 6 6 are 36 divided by 8। okay, 36 divided by 8, so 10 to the power minus 2। okay, 8 4s are 32 point, 4 is remaining, take 0, 8 5s are 40, so you can write this 0.045 joule। so this is the kinetic energy। okay, कितनी मिली है काइनेटिक, हमें काइनेटिक एनर्जी 0.045 जूल। बुक में जो आंसर है उसे आपको करेक्ट करना पड़ेगा। कितना है काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू, 0.045 जूल। दिस इज राइट आंसर। नाउ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। okay, so now just find the potential energy। so our potential energy
विल बी सी हियर। यहाँ पे क्या है, अभी यहाँ पे पेंडुलम हाइट पे गया है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियली PE1 होगा, यहाँ पे कितना होगा, PE2 होगा। तो आप क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी 1। यहाँ पे तो हाइट 0 लेंगे हम, सो यहाँ पे हम लिखेंगे PE2 को लिखेंगे mgh माइनस इनिशियली क्या था, 0 था, सो वी हैव mgh ओनली, सो mgh, सो बेसिकली आई विल राइट दिस mg। h क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, सो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड, okay, let's see this point as O. So this will be, H will be OC minus OB, okay, OC minus OB। क्यों OC minus OB? क्योंकि ये C to B जो है वो H है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, OC minus OB। So this will be OC minus OB, okay, mg। व्हाट इज OC? OCC क्या है, L है, तो टेक दिस L। अभी जो OB है, OB, ये जो OB है, वो किस तरह से हम फाइंड करेंगे, दैट इज एडजेसेंट साइड। सो वी हैव cos थीटा इज इक्वल टू, एडजेसेंट साइड के लिए कौन सा फॉर्मूला है, OB अपॉन L है, सो OB के लिए हम क्या लिख सकते हैं, L इंटू कॉस थीटा। सो राइट डाउन दिस एज L इंटू कॉस थीटा। सो टेक कॉमन L, नाउ यू हैव 1 माइनस कॉस थीटा, ओके, 1 माइनस कॉस थीटा। नाउ पोटेंशियल एनर्जी PE इज इक्वल टू mgl 1 माइनस क्या है cos थीटा, 0.8, ओके। नाउ पुट द वैल्यू, मास 10 टू द पावर -1, g है 10, l है 2 इंटू 10 टू द पावर -1, कितना होगा, 1 माइनस 0.8, 0.2 होगा, ओके। सो दिस -1 and this 10 will get cancel, okay, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा this and this, so we have 0.4 into 10 to the power -1, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया है, so this will be 0.04 जूल एनर्जी है, both answer will be in unit joule, okay। So our potential energy is 0.04 joule, okay। So this was the problem related to the conical pendulum. Thank you very much.